wetlands are the kidney of the earth. Do you agree? Also state the causes that has led to the loss of wetlands in India. Now this question is related to environment and this question is asked under 15 marks. So you have to answer this in 250 words. Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। So let's start. Today we are going to see a question that is related to General Studies 3 and the question is basically related to environment and pollution and degradation. Now the question is, wetlands are the kidney of the earth. Do you agree? Also state the causes that has led to the loss of wetlands in India. Now this question is related to environment and this question is asked under 15 marks. So you have to answer this in 250 words. Okay. Now I've already told you the questions that come in mains are strictly based on syllabus. अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो वहां पर सिलेबस इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड, बट इन मेंस द क्वेश्चंस, इफ यू विल सी द क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, you will find that the questions are strictly asked from the mains syllabus. If you will see the syllabus of General Studies 3, you will find a section where it is given conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. Now, wetland depletion is definitely related to conservation and degradation. So, this is kind of very relevant question. You have to use your information that you studied for prelims in this question and you have to write a detailed answer because it is asked under 15 marks. Now, we will discuss ki what is the requirement of the question and how we are going to answer this question. Now, let's start. First, आपको पता है we introduce the question to the examiner because we assure him that we have understood the question and we are going to answer this question well. So your introduction needs to be very convincing. आपको introduction इस तरह से लिखना है कि आप एग्जामिनर को कन्विंस कर दे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वेटलैंड्स आर द किडनी ऑफ द अर्थ, तो आपको पूछा गया है डू यू अग्री, तो आप एक अच्छा सा स्टार्ट कर सकते हैं, यस आई एग्री दैट द वेटलैंड इंडीड आर द किडनीज ऑफ द अर्थ एंड आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन या आप बोल सकते हैं आप 10 to 15 वर्ड्स या 20 वर्ड्स में यू कैन डिस्क्राइब अबाउट वेटलैंड्स एंड व्हाट इज वेटलैंड। अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड, कुछ भी हो सकता है वो, उसमें ज्यादा आपको डिटेलिंग करने का जरूरत नहीं, आप बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड बता सकते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस आपने कर दिया, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि इंट्रोडक्शन आपका 25 to 30 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है लेकिन कोशिश करिए कि इंट्रोडक्शन को क्रिस्प और शॉर्ट रखें। ठीक है, टू द पॉइंट लिखना है। इसके बाद द सेकंड पार्ट कम्स बॉडी ऑफ द आंसर। दिस इज द मेन पार्ट where we are going to address every requirement of this question. If you'll see the question, the first part is wetlands are the kidney of the earth. Do you agree? So the first part is saying that the wetlands are the kidney of the earth and if you agree, then state some points. Now, in order to convince the examiner, you have to write some features or you may say ecosystem services that are provided by wetlands such that they act like a kidney of this earth. Now, आप ऐसे कैसे फीचर्स लिख सकते हैं? आपको पता है, आपने प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है वेटलैंड के बारे में। अब वेटलैंड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद करते हैं, जो आपका ग्राउंड टेबल है उसको मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसके बाद अदर फीचर्स यू हैव टू राइट लाइक फिल्टरिंग आउट, जैसे किडनी का काम क्या क्या होता है कि वो इम्प्योरिटीज को फिल्टर आउट करते हैं, सेम जैसे कि हैवी मेटल पॉल्यूशन होता है हमारे यहाँ, तो उसको भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे हाइड्रोफाइट्स हैं जो कि वेटलैंड में पाए जाते हैं, जो कि आप बोल सकते हैं हैवी मेटल्स को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर को एक तरह से प्योर कर देते हैं। तो अगेन दिस इज अ इकोसिस्टम सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय वेटलैंड्स। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, फ्लड कंट्रोल करते हैं, वेटलैंड्स एक्ट्स एज अ फ्लड कंट्रोल। और अगर आप जो है मैंग्रोव्स की बात करें तो वो जो है क्या एक तरह से शोरलाइन प्रोटेक्शन करते हैं और टाइड्स के अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज आप जो है वो एक तरह से आंसर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट आप इसको जोड़ सकते हैं क्लाइमेट चेंज से भी। क्लाइमेट चेंज को आपको पता है कि वेटलैंड जो है वो कार्बन CO2 बहुत सीक्वेस्टर करते हैं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में काफी मदद करते हैं और एक तरह से नेचुरल कार्बन सिंक के जैसा एक्ट करते हैं। तो ये भी पॉइंट आप बता सकते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज में। तो इसके अलावा आपको 5 to 6, 7 पॉइंट्स बताना है जो कि इस चीज को वैलिडेट करता है कि वेटलैंड्स आर द किडनी ऑफ द अर्थ।
नाउ यू हैव एड्रेस्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में बात करें, ऑल्सो स्टेट द कॉजेज दैट हैज लेड टू द लॉस ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया। अब यहां पर देखिए जो सेकंड पार्ट है, यहां पर आपको ये बताना है कि वेटलैंड्स, आपको पता है ऑलरेडी इंडिया में जो है वेटलैंड्स का काफी लॉस हुआ है। सो यू कैन स्टेट एनी डेटा, यहां पर आप कुछ डेटा बता सकते हैं, अगर जो भी लॉस का है, कोई भी एक रफ डेटा अगर आपको ध्यान में है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर जो फाइंडिंग्स है तो आप उसको यहां पर स्टेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई अगर एनजीओ हो, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जो है, या फिर जो है किसी भी इंटरनेशनल, फॉर एग्जांपल अगर रामसर का भी अगर आपके पास कोई डेटा है रिगार्डिंग टू इंडिया, तो आप उसको स्टेट कर सकते हैं। यहां पर आपने डेटा से स्टेट कर दिया तो एक तरह से आपने वैलिडेट कर दिया कि सही में लॉस हुआ है वेटलैंड्स का इन इंडिया। इसके बाद आपको रीजन स्टेट करना है। तो रीजन क्या है आपका? रैपिड अर्बनाइजेशन, लॉस ऑफ, आप यहां पे एग्जांपल दे सकते हैं फ्लड प्लेन्स में यमुना प्लेन का और गंगा प्लेन्स का। उसके बाद आप बोल सकते हैं कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ है पूरे लैंड का, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेचुरल रिप्लेनिशमेंट जो होता था ग्राउंड वाटर का वो नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी आप बहुत सारा रीजन स्टेट कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ है कि आपका जो प्रेसिपिटेशन का पैटर्न है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारा वेटलैंड लॉसेस हुआ है। इसके अलावा फिर आप बता सकते हैं कि फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे पैडी ग्रोइंग, तो ये भी बहुत तरह से जो है हमारे वेटलैंड को डिस्ट्रॉय किया है। तो ये सारी चीज आप कुछ रीजंस बता दीजिए जिसकी वजह से लॉसेस हुआ है इंडिया में। ये आपने कर दिया। नाउ यू हैव एड्रेस्ड द बोथ पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। अब आता है बात कि यहां के बाद क्या करना है। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है कि यू कैन राइट वे फॉरवर्ड। अब आपने ऑलरेडी रीजन स्टेट्स कर दिया, तो वे फॉरवर्ड में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया है वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स, तो उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि नेचुरल टेक्निक से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा वेटलैंड जो है वो एक तरह से आप बोल सकते हैं प्रोटेक्टेड रहे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आपको पता है वाटरशेड मैनेजमेंट, तो डिफरेंट पॉइंट्स है। अगेन मैं इंफॉर्मेशन में नहीं जा रहा हूं बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आई एम जस्ट आउटलाइनिंग हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ यहां पर हमने डिस्कस कर लिया वे फॉरवर्ड्स कुछ। अगेन द लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन। आपको कंक्लूड करना है कि वेटलैंड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम के एंड दे नीडेड टू बी कंजर्व्ड, और उसके बारे में आप कुछ जो है कंक्लूड कर सकते हैं। अगेन ज्यादा नहीं, 20 to 30 वर्ड्स में, ठीक है, या आप उससे कम वर्ड्स में भी कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा प्रोग्रेसिव कंक्लूजन आपको देना जरूरी है। तभी जो है एग्जामिनर को भी एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है कि आपने टोटल आंसर को, मतलब पूरे आंसर को अच्छे से जो है वो सारे आप बोल सकते हैं पार्ट्स को एड्रेस किया है। तो यहां पर हमने देख लिया, हमने देखा कि कैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। तो इसी तरह से हम लोग मेंस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको क्या करना है, देखिए डेली क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे योर आंसर राइटिंग विल इंप्रूव एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंस। जब तक आप आंसर राइटिंग खुद से नहीं करेंगे, सारे आंसर्स को स्ट्रक्चर करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा। तो इसी कारण आप इस इनिशिएटिव को अच्छे से यूज करिए और इसमें जो भी क्वेश्चन आता है उसको प्रैक्टिस करिए एंड यू कैन सबमिट योर आंसर्स इन आवर पोर्टल एंड इट विल बी इवैल्यूएटेड बाय आवर dedicated mentors. Thank you.